اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پورے بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج پہلا روزہ ہے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، ادھر اس پورے بارڈر پر آج پہلا روزہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ سے دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے، سب کے لیے آسان فرمائیں۔ بہت سارے لوگ بیماریوں کے باوجود بھی روزے رکھ رہے ہیں، انہیں بہت بہت مبارکباد، اللہ ان کے ان روزوں کو قبول کرے۔ اور بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے چھوڑ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر، آئیے، رمضان کی پہلی رات تھی اور پہلی رات میں ہماری اس منحوس حکومت نے ایک فرمان جاری کر دیا اور CAA نافذ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن حکومت کی جانب سے جاری ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، بدھ، جین اور عیسائیوں کو شہریت دی جائے گی۔ ملک کے مسلمان جہاں ایک طرف رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، وہیں حکومت ہند نے مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، بدھ، جین اور عیسائیوں کو شہریت دینے والے قانون یعنی CAA کو نافذ کر دیا۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی قیادت میں حکومت نے CAA کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا یہ ایک بڑا قدم ہے۔ اس کے تحت اب 3 پڑوسی ملکوں کی اقلیتیں ہندوستانی شہریت حاصل کر سکے گی۔ مودی حکومت کا یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں الیکشن کمیشن ملک میں لوک سبھا انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے۔ جی ہاں، مودی حکومت 2024 جیتنے کے لیے ہر ایسے کام کر رہی ہے جس سے اس کو الیکشن میں فائدہ پہنچے، ہندوتوا ٹولہ خوش ہو اور الیکشن میں BJP کو فائدہ پہنچے۔ رام مندر کا
अधूरा उद्घाटन भी इसीलिए करवाया गया ताकि इलेक्शन में उसका फायदा हासिल हो, और अब CAA का भी ऐलान कर दिया गया। और अब लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि रमजान के पहले ही दिन इसलिए CAA के नाफिज करने का ऐलान किया गया क्योंकि रमजान में रोजों की हालत में मुसलमान विरोध नहीं कर पाएंगे। यानी बड़ी होशियारी के साथ रमजान आते ही पहले रोजे के दिन ही गोया के ये CAA का ऐलान कर दिया गया ताकि मुसलमान पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहीं पर भी विरोध न कर सके। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्त हो गई है और SBI की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज डेटा फराहम करने का हुक्म दिया है और आदेश पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक तफसीलात शाये करने की हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को पीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने SBI की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें उसने सियासी जमातों के जरिए कैश किए गए इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात फराहम करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ाने की दरखास्त की थी। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है लेकिन मैं नेशनल में भी इसको बयान कर रहा हूँ ताकि भारतवासी भी इस चीज़ को समझ सके, मुसलमान ख़ास तौर से एहसास पैदा कर सके और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद, ख़ास तौर से भारत के इंसाफ पसंद भी इस चीज़ को समझ सके कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल ने एक रमज़ान को भी गज़ा में गोलियां चलाई, बमबारी की, जिसमें गुज़िश्ता कल 70 रोज़ेदार भी शहीद हुए हैं। गज़ा में एक रमज़ान को इजराइली बर्बरियत में 70 रोज़ेदार शहीद कर दिए गए हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इजराइली काबिज फौज ने गज़ा की पट्टी में ख़ानदानों के खिलाफ 7 कत्ले आम किए जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 शहीद और 106 जख्मी भी हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा कि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे और सड़कों पर पड़ी हुई है। काबिज इजरायली आतंकवादी फौज एम्बुलेंस और शहरी दिफा के अमले को उन तक पहुंचने से रोक रही है। उधर क़िबला अव्वल में पहली तरावी के लिए मुसलमानों को दाखिल होने से रोक दिया गया। अहले फ़लस्तीन की बड़ी तादाद क़िबला अव्वल के बाहर ही नमाज पढ़ने पर मजबूर हुई और पहली सैरी थी। जिबालिया कैंप समेत दीगर तबाह और बर्बाद इलाके में मुसलमानों ने इजरायली हमलों की परवाह न किए बगैर नमाज तरावी उन मुसलमानों ने अदा की। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है कि अब ASI को भोपाल की कमाल मौला मस्जिद के सर्वे का हुक्म भी दे दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना घटिया किस्म का माहौल, नीच किस्म का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश में भोजशाला का साइंसी सर्वे होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने हुक्म में वाज़े तौर पर कहा कि ASI को भोजशाला की तारीखियत का साइंसी और तकनीकी सर्वे करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को धार जिले में वाक़े 11वीं सदी की मुतनाज़े भोजशाला, यादगार और कमाल मौला मस्जिद का सर्वे करने का हुक्म दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामी एक संस्था, एक तंजीम ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि भोजशाला एक यादगार मंदिर है। अर्जी ने 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हुक्म को चैलेंज किया गया जिसमें हिंदुओं को रोजाना भोजशाला में पूजा करने पर पाबंदी थी। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, ED के डर से और ED के आतंक से डर कर एक और लीडर ने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि बीजेपी में चले जाओ ED CBI से बच जाओगे।
कह रहे हैं कि उद्धव रविंद्र वायकर, राहुल शिवाले और यशवंत जाधव को स्टैंडिंग कमेटी दी थी, सभी ने साथ छोड़ दिया। रविंद्र वायकर के शिवसेना शिंदे ग्रुप में दाखिल होने से उन लीडरों की फेहरिस्त में एक और इजाफा हो गया जिन्होंने ईडी या दीगर एजेंसियों की कार्रवाई के डर से बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। जैसा कि माजी में ये बात सामने आई है कि हुक्मरानों के सामने हथियार डालने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए हुक्मरानों के हत्थे चढ़ जाने वालों की तादाद अब बढ़ने लगी है। ईडी ने जोगेश्वरी में म्युनिसिपल प्लाट पर वाक़ क्लब और 5 स्टार होटल पर वायकर और उनके खानदान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले में खुद वायकर और उनकी बीवी को मुलजिम बनाया गया था। वायकर से पहले ईडी ने पूछताछ की थी। कयास आरैया की जा रही थी कि वायकर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रेट सोमिया ने भी यही पेशन गोई की थी। वायकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। अब पूरा यकीन हो गया है कि अब ना होटल टूटेगी ना ये दोनों मियां बीवी जेल में जाएंगे क्योंकि बीजेपी में चले गए हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई से जमीयत उलमा से हमारे नुमाइंदे मुफ्ती अबू अयूब साहब ने बताया कि जमीयत उलमा हजरत मौलाना रिजवान अहमद का इलाज करा रही है। जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासिमी ने इस बात की वजाहत फरमाई है। बताया जा रहा है कि शनिचर के दिन मदरसा इमदादिया लहरिया सराय जिला दरभंगा बिहार के मौलाना रिजवान अहमद साहब जमीयत उलमा महाराष्ट्र का तस्दीकनामा हासिल करने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर तशरीफ ला रहे थे। मौसूफ शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज है। दफ्तर आने वाले बाद सुफरा हजरात ने दफ्तर के अमले को ये इत्तला दी कि एक शख्स जो शक्लो सूरत से किसी मदरसे का नुमाइंदा मालूम होता है, रब्बानी होटल जो दफ्तर के करीबी है वहां पर जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के स्टाफ में से जनाब खलील भाई और दीगर वहां फौरन पहुंचे, उनको नजदीकी शफाखाने साबु सिद्दीक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जमीयत उलमा के जिम्मेदार जनाब सिराजुद्दीन साहब ने बतौर खास मौलाना मोहतरम को एडमिट कराने और इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने में दिलचस्पी ली। दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की इत्तला के मुताबिक डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, शुगर लेवल काफी हाई है और ब्लड प्रेशर लो है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। मौलाना मेहरुल हक कासवी साहब ने मौलाना हलीमुल्लाह कासवी साहब को इस हादसे की इत्तला दी। हजरत मौलाना ने बिला किसी ताखीर के मौलाना मेहरुल हक साहब को हुक्म दिया कि उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जो भी मुमकिन हो सके उनको मदद पहुंचाई जाए और हर तरह से उनके इलाज करवाने की कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का इलाज हो रहा है। और वैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के ऑफिस के पास सुफरा की एक लंबी लाइन है जो तस्दीक नामा हासिल करने के लिए आई हुई है। एक्चुअल में मुंबई में आप कहीं पर भी सफ़ीर आते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो उनसे जमीयत का तस्दीक नामा देखा जाता है, पूछा जाता है, तो सफ़ीरों की एक लंबी लाइन है। हम सुफरा हजरात से भी मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले। जमीयत के कारकुनान अपनी हफ्तावारी छुट्टी को भी कुर्बान करके आप लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। जो वक्त जमीयत को दरकार होता है वो लगेगा, इसलिए सुफरा हजरात भी तहम्मुल से काम ले। और हम अवामुन नास से भी अपने चैनल के जरिए से अपील कर रहे हैं कि ये जो सुफरा आ रहे हैं इनका एहतराम करें। ये अल्लाह के बंदे रोजे की हालत में घूम घूम कर आपके पास में आते हैं और अपने मदरसे का ताउन करने की अपील करते हैं। ये आ रहे हैं, इनका बड़ा एहसान है, इनका एहतराम करें, इनका ख्याल रखें और अल्लाह ने देने वाला बनाया तो जरूर दें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सख्त वार्निंग के बाद राहुल गांधी ने यह कमेंट किया है कि अब मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा है कि अब मोदी जी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। उन्होंने पीर को दावा किया कि पीएम मोदी का चंदे का धंधा बेनकाब होने वाला है। एनडीए हुकूमत अपनी ही बैंक के डेटा को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सर के बल खड़ी हुई है। चंदा देने वालों पर मेहरबानियों का फूल और जनता पर भारी टैक्स का बोझ, ये बीजेपी की मोदी हुकूमत का कारनामा था जो अब खुलकर सामने आ रहा है। और उन्होंने लिखा कि अब नरेंद्र मोदी का डोनेशन बिजनेस बेनकाब होने वाला है। स्विस बैंकों से 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा करके हुकूमत में आने वाली अपने ही बैंक का डेटा छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट में सर के बल खड़ी हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंतखाबी बॉन्ड हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है जो करप्ट सनतकारों और हुकूमत के गठजोड़ को बेनकाब करेगा और नरेंद्र मोदी का असल चेहरा मुल्क के सामने लाएगा। क्रोनोलॉजी वाजे है, अतिया करें कारोबार लें, अतिया करें डोनेशन दे, सिक्योरिटी ले, चंदा देने वालों पर मेहरबानियों की बारिश करने वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी का अब चेहरा सामने आने वाला है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइराजन बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से अंजुमन लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट अब्दुल्ला नदवी, तालिब इल्म, अंजुमन लॉ कॉलेज के तालिब इल्म अब्दुल्ला नदवी और रिजवी कॉलेज के मुजक्किर खान ने मुल्क का नाम रोशन किया। बताया जा रहा है कि सऊदी मरकज बराए तिजारती सालिसी SCCA की जानिब से सऊदी अरब की राजधानी रियाज में 4 रोज का एक अरबी बैनुल अक़वामी तिजारती सालिसी मुकाबला कंपटीशन मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर अब्दुल्ला नदवी ने नामा निगार को बताया कि उनको इस आलमी मुकाबले में शिरकत के लिए काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ी क्योंकि मुसाबिका कंपटीशन अरबी ज़बान में था और एक गैर अरब तालिब इल्म के लिए अरबी कानूनी इस्तिलाहात और ज़बान का फ़हम और इस्तेमाल निस्बतन दुश्वार होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इस्लाम बैरिस्टर AR अंतोले कॉलेज अफला मुंबई के साले आखिर के तालिब इल्म अब्दुल्ला हुसैन नदवी और रिजवी लॉ कॉलेज के तालिब इल्म मुजक्किर खान को गैर मामूली कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा गया। मैं आपको बता दूं कि मज़कूरा बैनुल अक़वामी मुकाबले में पहली बार कोई गैर अरब टीम इस किस्म के इनाम और एजाज के मुस्तहिक करार पाई है। हम अब्दुल्ला साहब नदवी को और रिजवी कॉलेज के मुजक्किर खान को जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, वायरल न्यूज लाइव की जानिब से हम मुबारकबादी पेश करते हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है कि एक बस पर, गाजीपुर में एक बस पर हाई टेंशन बिजली का तार गिरा, बस खाक हो गई और 6 लोगों की जगह ही पर मौत हो गई। 10 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे। बस में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महलूकीन के मरने वालों के वरसा को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये एक बड़ा हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि यहां शादी की बारातियों की मिनी बस 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार को छू गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। अब तक 6 अफराद के मरने की खबरें हैं। इस हादसे में कई अफराद की हलाकत का अंदेशा भी बताया जा रहा है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये वो औरत है कि जिस पर बड़ा केस चल रहा है, जिसने
मालेगांव में बम ब्लास्ट के जरिए से कई बेकसूर इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। मालेगांव बम ब्लास्ट का केस इस औरत पर जारी है, मगर बीजेपी जब किसी पर मेहरबान हो जाती है तो फिर ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बीजेपी ने इसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। खैर, ये अदालत में हाजिर नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने और बीमारियां बताती है, और कभी क्रिकेट खेलते हुए नजर आती है तो कभी फुटबॉल खेलते हुए नजर आती है। अदालत से लगातार गैर हाजिरी की वजह से अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ काबिले जमानत वारंट जारी हुआ है। अदालत से लगातार गैर हाजिरी के सबब खुसूसी NIA अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की अहम मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर।